أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أسألك العلم النافع ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے اور عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے سسٹر، آج ہماری اردو بیسک کا پہلا کلاس ہے۔ کل ہم نے انٹروڈکشن دیکھا، اردو کی اہمیت دیکھی، اردو کی ضرورت دیکھی اور اردو کے استعمال سے ہم میں کیا سدھار ہونے والا ہے، ہم کیسے اردو کا استعمال اپنی شخصیت کی نکھار میں، اپنے بچوں کی شخصیت کی نکھار میں کرنے والے ہیں، یہ ہم نے کل دیکھا۔ تو چلے آغاز کرتے ہیں ہمارے کلاس کا۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں حروف تہجی۔ جیسے کوئی بھی لینگویج اگر ہم سیکھتے ہیں، اگر ہم سیکھتے ہیں تو اس لینگویج کو سیکھنے سے پہلے اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں جس سے ہمیں شروعات کرنی ہوتی ہے۔ ہاں، الفابیٹس۔ جیسے اگر انگریزی لینگویج کو لیتے ہیں ہم تو اس میں اے بی سی ڈی ہے نا، اے ٹو زیڈ لیٹرس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھنے والے ہیں کہ اردو میں حرف تہجی ہوتی ہے۔ حرف تہجی یہ الف سے لے کر یا تک جو لیٹر ہے، الف سے لے کے یا تک، ان تمام حروفوں کو ہم کہتے ہیں حرف تہجی۔ حروف تہجی تو یہ 38 ہے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اردو میں جو ہے نا لیٹر، حروف، ایک اگر سا لیٹر ہوتا ہے، دیکھیں لیٹر، جیسے الف، بے، یہ جو ہے نا لیٹر، اس کو حروف کہتے ہیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے حروف، اور جو حروفوں کو مل کر بنتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور جو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں ان کو جملے کہتے ہیں۔ یہ آگے آگے آپ کو آ جائیں گا، ابھی اتنا ٹینشن نہ لیا، پہلے ابھی ہم حروف تہجی دیکھیں گے صرف، اور ٹینشن بالکل بھی نہیں لینا ہے آپ کو، بہت ٹائم دیا جائے گا، جب تک آپ کو کلیئر نہیں جو ہوتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو دیکھیں حروف تہجی آج دیکھنے والے، آج الف سے لے کے یا تک ہم پورے لیٹرز کے نام دیکھیں گے پہلے، اور انہیں کس طریقے سے یاد رکھنا ہے آج ہم وہ دیکھنے والے ہیں۔ تو پہلے دیکھیں الف۔ الف کو اگر ہم چھوڑتے ہیں، پہلے تو ہم ان کیا کریں گے، گروپ میں ڈیوائڈ کریں گے ہمارے آسانی کے لیے، کیونکہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یا ٹرک کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم انہیں اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ صرف الف کو ہم سائڈ میں نکالیں گے، الف، ہاں، الف کو چھوڑتے ہیں تو یہ پوری فیملی، مطلب دیکھو یہ بے کی فیملی، سب ایک ہی طریقے سے ڈرا ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ ڈرا کرنا سیکھ جاتے ہیں، یہ والا، یہ والا شیپ اگر آپ ڈرا کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ پوری فیملی آپ کو ڈرا کرنا آئے گی۔ پھر اور دیکھیے دوسری فیملی، یہ جیم کی فیملی ہوگی، یہ جیم کی، اگر یہ شیپ، یہ اس طریقے سے شیپ اگر سے آپ سیکھ جاتے ہیں، ہم آگے لکھا کر لیں گے، یہ صرف آپ کو بیسک بتا رہی ہوں۔ تو یہ 4 لیٹر آپ کو بالکل ایزی سے آ جائیں گے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ نقطہ کسے کہتے ہیں، ایک ڈاٹ، یہ بھرا ہوا ایسا نقطہ نہیں ہوتا، دیکھیں اردو میں نقطہ ایسا، فار ایگزامپل یہ، اور اس کو فیل کیا ہونا چاہیے۔ تو نقطہ یعنی کہ اگر ہم پینسل کی نوک رکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں تو اس کو نقطہ کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہے۔ تو یہ نقطہ، پھر نقطوں کا فرق ہے اس میں صرف، باقی 4 میں جیسے جیم چیم ہے خے میں۔ پھر اسی طریقے سے یہ دال کی فیملی ہے۔ اب دال کی فیملی میں لیٹر دیکھو کتنے آتے ہیں، دال، ڈال، زال، اور یہ رے، رے ڈے زے زے، یہ آئے گی۔ آپ کو یہ لیٹر ڈرا کرنا آ جاتا ہے، یہ شیپ، تو آپ کو یہ پورے لیٹر ڈرا کرنا آ جائے گی۔ پھر دیکھیے ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے۔ پھر یہاں پر گروپ فیملی ختم ہو گئی، یہاں سے پیئر پیئر ہے، جوڑی جوڑی، دیکھیں ان کی ایک جوڑی ہے، یہ تو زوئی کی، آئین غین کی، پے قوف کی، اور ایک کاف گاف کی، اور پھر یہاں سے الگ الگ لیٹر آتے ہیں جیسے میم، نون، لام وغیرہ، یہ آگے دیکھیں گے۔ یہ ہم نے گروپ کریں گے۔ تو یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہے، یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، کم سے کم ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ سیکھنے والے ہیں۔ تو آج ہم صرف پہلے دیکھیں گے کہ ان کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، ان کی نام کیا ہے ان سبھی کے۔ اب کچھ سسٹر ہمارے ایسے ہیں جنہیں تو کچھ بھی نہیں آتا ہے نا، یہ لیٹرز کے نام بھی نہیں پتا، تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ عربی اور اردو 80-90% سیم حرف تہجی ہے، سیم۔
अब देखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, अलिफ। अरबी में भी अलिफ ही कहते हैं ना इसको, अलिफ। फिर ये इसका नाम होगा, देखिए मैं सभी का नाम बता रही हूँ, आज सिर्फ हम नाम की प्रैक्टिस करेंगे, सभी के नाम की। फिर इंशाल्लाह अगली स्टेप हमारी क्या होगी कि नाम के साथ हम उसका साउंड, है ना, साउंड। नाम अलग है और साउंड अलग है, वो आपको मैं बता दूंगी बाद में। आज सिर्फ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हुर्फ तहजी के नाम को याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा अलिफ। अलिफ इजी है, अरबी में भी सेम है, वही भी बहुत सारे अल्फाज सेम है। सिर्फ देखिए फर्क किधर आता है, ये जोय, जोद। तो हम अरबी में इसको क्या कहते हैं, दोआद, है ना, दोआद कहते हैं, मगर यहाँ पर इसको जोद ही पढ़ना है आपने। और एक लेटर देखिए, ये दो चश्मी हा और हमजा, इसको भी, इसमें भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है अरबी में और उर्दू में। और ये गाफ, गाफ एक अरबी में उर्दू में होता है और अरबी में नहीं होता। ये आगे देखेंगे हम। हाँ, तो देखिए अलिफ, इसको कहेंगे बे। देखिए जो इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, ये इस तरीके से, और इसके नीचे एक नुक्ता होता है। एक नुक्ता। यहाँ पर स्क्रीन पर सिर्फ एक डॉट नहीं होता है, दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको आपको बड़ा करके बता रही हूँ। तो ये होगा बे। हाँ, नीचे एक नुक्ता, ऐसे शेप निकालेंगे और नीचे एक नुक्ता होगा ना, तो बे होगा। इसको हम बा नहीं बोलेंगे, बे। उर्दू में बे ही बोलना है, इसका नाम बे ही है, आपने बे ही याद रखना है। हाँ, फिर हो गया बे। फिर इसी को हम क्या करेंगे, देखिए इसी को क्या करेंगे, नीचे तीन नुक्ते देंगे, 1 2 3। 3 नुक्ते देते हैं तो ये बन जाता है पे। यहाँ पर देखिए अलीफ बे पे। अब क्या करते हैं हम, इसके ये जो नुक्ते हैं यहाँ के इरेज करते हैं और ऊपर नुक्ते देते हैं, और वो भी नुक्ते देंगे हम 2, 2 नुक्ते देते हैं, तब इसका नाम होता है ते। ये आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। हम सीक्वेंस से पढ़ कर लेंगे, उल्टा पढ़ कर लेंगे, बीच में से लेंगे, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो देखिए अलीफ बे पे ते, है ना, दो ऊपर नुक्ते दिए तो हमने ते बन गया। फिर हमने क्या करना है, देखिए ये ते को जो 2 नुक्ते हैं हम वो इरेज करेंगे। अब देखेंगे हम इसमें, देखिए ये वाली शेप जो हमारी तोय वाली शेप होती है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना, तोय। जो तोय होता है सेम तोय बनाना है, मगर जो इसका फिगर है वो छोटा बनेगा। तो ये होगा टे। टे, टे फॉर टमाटर। हाँ, तो टे होगा, ये टे, इसका नाम होगा टे। मगर देखिए फर्क क्या है, अभी दो सेम है, मगर जो इसका फिगर है, मतलब जो इसकी साइज है, ये बड़ी होगी तोय की। और जो ये टमाटर का टे हम बना रहे हैं उसमें सेम बनाना है, मगर इसकी जो है ना साइज छोटी होगी। ये याद रखना है। तो अलीफ बे पे ते टे, और ये हो गया से में क्या करना है हमें, जैसे पे है उसका उल्टा करना है से में। से में क्या करेंगे हम, जैसे कि पे में नीचे नुक्ते होते हैं, तो हमने से में क्या करना है, अंदर नुक्ते देने हैं, ऊपर नुक्ते देने हैं। अंदर से ज्यादा याद रखिए आपके, ऊपर नुक्ते देने हैं 3। देखिए अब इतनी लाइन को हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले ध्यान से देखना, तवज्जो से देखना। और जब क्लास एंड हो जाएंगी ना, आपको जो लेटर याद नहीं रहता, कौन से लेटर का नाम याद रखना मुश्किल लग रहा है, वो सब आप पूछ सकते हैं, हम आखिर में आपको टाइम भी देंगे। तो आप देखिए, अभी मैं रिवाइज करा रही हूँ। अलिफ, इसका नाम है बे, ये है पे, ये है ते, ये है टे, और ये है से। अब आप कहेंगे अलिफ तो सभी को याद रहता है, बे। बे से बाजा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बे से बाजा। अभी पे, अब कंफ्यूजन बहुत सारे सिस्टर को होता है, देखिए पे में, हाँ क्यों, तो पे के नुक्ते नीचे होते हैं, हाँ ये 3 नुक्ते, और से में कंफ्यूजन होता है। अब जिसे कंफ्यूजन होता है वो देखे, एक ट्रिक देखेंगे हम यहाँ पर इसकी। अब पे के नुक्ते नीचे होते हैं, हम ये बात याद रखेंगे सिर्फ हमारे जहन में। हमने क्या याद रखना है कि जो पे लेटर है, कि इसके नुक्ते जो होते हैं तो नीचे होते हैं। तो अब नीचे होते हैं मीन्स क्या, कि देखिए पतंग जब हम उड़ाते हैं तो नीचे से ऊपर जाती है ना, ये पतंग हम उड़ा रहे हैं समझो, तो ये पतंग क्या करती है, नीचे से ऊपर जाती है। तो ऐसे याद रखना है, पतंग नीचे से ऊपर जाती है, दैट्स मीन क्या, कि पे के नुक्ते नीचे हो गए। अपने ये माइंड में आपने फिट कराना है, क्या माइंड में फिट करना है, कि पतंग नीचे से ऊपर जाती है, तो नीचे से जाती है मीन्स क्या, कि पे के जो नुक्ते हो गए नीचे हो गए, ऐसे याद रखना है। फिर इसका उलट से का आपको याद रहेगा, दोनों में कंफ्यूजन है पे और से में, कि पे के नुक्ते किधर हो गए और से के नुक्ते किधर हो गए। तो आपने याद रखना है पे से पतंग, और पतंग नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से जाती है, इसका हमें याद रखना है कि नीचे नुक्ते हो गए पतंग में। ओके, पतंग मीन्स पे, हम ऐसे याद रखेंगे, हाँ पे को। हाँ? अच्छी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इससे। ये हम आइडिया क्यों निकाल रहे हैं, एक ट्रिक क्यों निकाल रहे हैं, कि जो सिस्टर न्यू है ना, उन्हें याद रखने में कोई दिक्कत ना आए।
हाँ, जिसको आता है वो कोई बात नहीं, मगर कुछ सिस्टर ऐसे भी है कि जिन्हें शनाख्त याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो पे और से का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए अब इतना और एक बार रिवाइज करेंगे हम। अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। रिपीट देखे, अलिफ, बे, पे फॉर पतंग, टे, टे से टमाटर, ओके, और से समर। से पे और से में कंफ्यूजन है, बाकी कंफ्यूजन वाला मेरे ख्याल से तो कोई नहीं, अगर होगा तो आप लास्ट में पूछ ले, हम उसका भी देख लेंगे। हाँ, बहुत सारी सिस्टर को कंफ्यूजन है, पे और से में याद होता है, पे और से में रहता है कि पे के नुक्ते को कैसे याद रखेंगे और से के। तो चले और एक बार रिपीट देखते हैं। देखिए, इनके नाम याद रखना है बराबर, और इनके नुक्ते याद रखना है। आपको याद क्या रखना है, पहले याद रखिए कि आपको याद रखना है नुक्तों से शनाख्त होगी। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे ना, तो जब मिलाकर लिखना सीखेंगे ना, तो इनकी शक्लें थोड़ी सी चेंज होती है। तब शक्लों का कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ नुक्तों से पहचाना है लेटर क्या है, इसलिए अब नुक्ते याद रखना बहुत जरूरी है आपके। तो पहले से बताती हूँ नाम, अलिफ, बे, पे, टे, टे और से। ये हो गया इनका। हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अब देखिए जीम चीम का और है खोय का। हाँ, तो जीम का देखिए, पहले हम उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। देखिए, हम ड्रॉ करने के लिए भी जो हमारी लिखावट की जब राइटिंग की क्लास होगी ना, तब हम भरपूर प्रैक्टिस करने वाले, टेंशन नहीं लेना है अभी इसी वक्त। देखिए, एक आड़ी लकीर लिया, उसको इस तरीके से आधा गोल जोड़ा। अब आधा सर्कल हमारा कैसे होता है, ऐसे। तो हमने ड्रॉ कैसे करना है, पूरा आधा सर्कल ऐसे नहीं करना। जैसे कि देखिए, हमारा पूरा सर्कल हो गया, इसको आधा उठाया। हाँ, हम आधा उठाना है, मगर कैसे उठाना है कि इसकी ये साइज को हमने ना बेजवी शक्ल का, अंडे की शक्ल का लेना है थोड़ा सा। देखिए, ऐसे बेजवी शक्ल का ड्रॉ करते वक्त आपने याद रखना है। एक तो हम पहले क्या बोल रहे हैं कि आधा सर्कल जोड़े, मगर एज इट इज आधा सर्कल अगर हम जोड़ते हैं ना, तो वो ठीक नहीं दिखाई देता है। तो हमने क्या करना है, जो आधा सर्कल है उसको बेजवी शक्ल में जोड़ना है। मतलब अंडे की शक्ल में थोड़ा सा उसको शेप देना है। और फिर देखिए, ये इस तरीके से होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा डंडा। जब आपकी स्पीड आएगी ना, आपको खुद इस तरीके से आप ड्रॉ करना सीख जाएगी। हाँ, तो ये शेप आता है, तो आपके 4 लेटर है ना, 4 हरूफ क्लियर हो जाते हैं कि जीम चीम है खै। अब देखिए, इनका नाम कैसे याद रखेंगे हम। देखिए, जीम, जीम का नुक्ता नीचे यानी अंदर होगा, नीचे। आप कुछ नजदीक करीबन कैसे याद रखेंगे कि नीचे और ऊपर नुक्ते का याद रखिए, क्योंकि ख्वा का नुक्ता क्या होता है हमारा, ये ख्वा। देखो, ये ख जो होता है ना, ख, ख्वा नहीं बोलना इसको, ख्वा अरबी में बोलेंगे इसको, ख उर्दू में इसका नाम है ख। जीम का नुक्ता नीचे, दैट्स मीन जमीन नीचे है। देखिए ना, ये जीम, जब बाद में हम मिलाकर लिखते हैं ना जीम, जिम लेटर को, तो वो सिर्फ ऐसे उसका शक्ल चेंज हो जाती है। तो आपने याद रखना है जिम का नुक्ता नीचे, यानी ये जो सर है ना, सर के नीचे। देखिए, ये सर है उसका, और इस सर के नीचे नुक्ता है। तो जिम यानी जमीन नीचे है, इसलिए जिम का नुक्ता भी नीचे होगा। हाँ, याद रखना है, और जिम का एक नुक्ता होगा। और चीम, चीम के नुक्ते होंगे 3। देखिए, अब नाम बता रही हूँ मैं, अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन ना करना। और फिर भी इतना बताने के बाद भी आपको कंफ्यूजन में क्या करना है, ये बाद में पूछना है। तो देखिए, अब क्या है हमारा जीम। तो ये है जीम, जमीन, जमीन नीचे है, इसलिए जीम का नुक्ता नीचे। फिर इसका नाम है चीम। इसको किधर देखिए, चे भी बोलते हैं। हाँ, चे भी बोलते हैं, आप चे बोलते हैं तब भी ठीक है, या चीम बोलते हैं तब भी ठीक है, किंतु सिर्फ इसका साउंड तो च ही रहेगा। नाम आप चे कहे या चीम कहे, मगर साउंड इसका च ही रहेगा। हाँ, फिर आप ये देखिए है, हाँ ये है, और ये है खे। ये जीम, ये चीम, ये है, और ये होगा खे। रिपीट सुने, जीम, चीम, है, खे। मेरे साथ बोलते रहे आप खुद भी, अनम्यूट ना करे, सिर्फ बोलते रहे, प्रैक्टिस हो जाएगी। जीम, हाँ जीम, जीम का नुक्ता होगा नीचे। चीम, चीम के होंगे 3 नुक्ते, ये है और ये होगा खे। अब बहुत सारे सिस्टर को कंफ्यूजन होता है और खे में। हाँ, कंफ्यूजन किस में होता है, जमीन, जीम और चीम का कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपका। अब है कंफ्यूजन की बारी है और खे में। तो अब इसको कैसे याद रखना है, ये जो है, हाँ इसको हम क्या बोल रहे हैं, है। तो जब हम है बोल रहे हैं, तो उस पर नुक्ता नहीं है, ऐसे बोलना है आपने। आपने अपने माइंड को क्या कहना है कि जब हम इसको कह रहे हैं है, इसका नाम है, तो इसका मतलब है इस पर नुक्ता नहीं है। हाँ, ऐसे याद रखना है। तो नुक्ता किस पर है फिर, खे का। कंफ्यूजन सिर्फ 2 में होता है, अगर आप एक को आपके माइंड में फिट कर दे, तो दूसरा वाला दूसरा होगा, ऐसे कहना है। हाँ, तो है
पर नुक्ता नहीं होगा। हाँ, मतलब है कह रहा है कि मुझ पर नुक्ता नहीं है। हाँ, इस तरीके से ये इसको याद रख सकते हैं। चलिए रिपीट में और ये 4 लेटर का बता देती हूँ। देखिए अभी जीम, ये है जीम, हमारा जीम। ये है चीम, ये है पे नुक्ता नहीं है, और ये है खै। चलिए रिपीट, अलीफ, बे, पे, ते, से। फिर जीम, चीम, है, खै। अलीफ, देखिए अलीफ, बे, पे, ते, से। हम्म, जीम, चीम, है पे नुक्ता नहीं है। हाँ, और ये होगा हमारा खै हो गया। याद रखेंगे। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना। जीम का नुक्ता जमीन नीचे है, इसलिए जीम का नुक्ता उसके सर के नीचे है। चीम में 3 नुक्ते होते हैं, और है कह रहा है कि मुझ पर नुक्ता नहीं है, और ये हो गया नुक्ते वाला खै। इतना हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं, हम ये दाल के 3 लेटर देखेंगे। दाल की फैमिली में से 3 लेटर के बारे में आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए अभी दाल, दाल का अगर आपको शेप अगर ड्रॉ करने की बात मैं कहूँ तो इजी है। हाफ सर्कल लेना है, सिर्फ हर हाफ सर्कल। हाँ, उसमें कुछ चेंज वगैरह कुछ नहीं करना आपने। देखिए ये दाल हो गया, दाल हो गया ऐसे। ये शेप आपको आ गई तो दाल, जाल और डाल भी आएगा। अब देखिए दाल, ये दाल है ना। देखिए हमारी जो दालें होती है ना, दालें है ना, हम मूंग मसूर ये जो दालें खाते हैं ना, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। देखिए ऐसे, मतलब ये गोल होता है इस शेप में। फिर अगर हम इसको तोड़ते हैं बीच में से तो ये ऐसे होता है ना, 2 उसके हिस्से निकलते हैं। तो उस तरीके से आपने याद रखना है कि ये एक दाल है ना, एक दाल है। हाँ, दाल को दाल ही कहना है आपने। फिर दाल के ऊपर जब छोटी तौ बन जाती है, तोय बन जाता है, छोटा तोय, तो इसको बनेंगे, इसको हम कहेंगे डाल। इसको कहेंगे हम डाल। और ये नुक्ते वाला होता है जाल। हम इसको बहुत दफा पढ़ने वाले, बहुत बार पढ़ने वाले। एक ही क्लास में आपका नहीं होगा, और जिसका हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं हो रहा तो डरना नहीं, हम इसका रिवीजन बहुत करने वाले। और तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह जब तक आपका क्लियर नहीं होता। हाँ, तो देखिए आगे और क्या कह रही थी मैं, ये दाल, डाल और जाल, इसको हम कैसे याद रखेंगे। हाँ, देखिए 3 लेटर है। हाँ, ये दाल, फिर ये दाल, और ये हो गया जाल। तो देखिए ये जो दाल है ना, दाल, हाँ इसको मैंने कहा आपको कि दाल से याद रखिए। दाल को जब हम तोड़ते हैं, एक दाल का अगर हम एक बीज लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो ये यही शेप होती है ना दाल की। देखिए ऐसे आधा उसका, अगर हम ऐसे रख के देखेंगे तब। तो ये हो गया दाल। फिर ये होता है डाल, डाल। हम्म दाल पर छोटी तोय अगर लिख देते हैं हम, तो वो होता है दाल। तो हम कह रहे हैं मम्मा दाल डाल, है ना, हम मम्मी को कह रहे हैं, बच्चे जब हमें कहते हैं ना, अगर हम दाल बनाते तो मम्मा दाल दाल, तो ये दाल और ये होता है डाल। 2 लेटर ऐसे याद रखना है, दाल, डाल। हम्म ये दाल और ये होगा डाल। हम्म दाल, डाल। ओके, ये 2 लेटर को याद रखना है। तो ये हो गया दाल और डाल। फिर देखेंगे हम कि जाल, इसको याद रखना है। दाल का अपोजिट होगा जाल। अब दाल का अपोजिट जाल क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि दाल पर नुक्ता नहीं होता और जाल पर नुक्ता होता है, ऐसे याद रखिए। ये देखिए इसका अपोजिट होगा ये। किस बात में अपोजिट, नुक्ते के हिसाब से। दाल पर नुक्ता नहीं होता और जाल पर नुक्ता होता है। मैंने एक चार्ट बनाया है, मैं वो चार्ट आपको भेज दूंगी होमवर्क ग्रुप पर, कि जिसमें हुर्फे तहजी के पूरे लेटर है, उनको उनके नाम है, प्लस उनका साउंड है। हाँ, इस हिसाब से। तो अभी टेंशन न लेना कि मैं कैसे याद रखूंगी, अभी क्लास के बाद मुझे याद नहीं आएगा तो क्या होगा, है ना, ऐसे भी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब यहाँ तक हम क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। हम्म देखिए पहला, देखिए अब देखिए अलीफ, बे, पे, पे से पतंग, ते, फिर ये हो गया हमारा से। फिर ये जीम, चीम, है, खै, और ये हो गया दाल। ये दाल, ये दाल, और ये हो गया जाल। इतने लेटर आपके क्लियर होना चाहिए अभी तक। हाँ, देखिए अलीफ, बे, पे, से, जीम, चीम, है, खै, दाल, डाल, और ये हो गया हमारा जाल। हम्म, यहाँ तक आज के लिए काफी है। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, और खूब इसकी प्रैक्टिस ली जाएगी। आपने डरना नहीं है कि पहली क्लास से मुझे तो इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। जिसको देखे अरबी जो जानते हैं ना, उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत इजी से याद रह जाएगा। मगर जो न्यू सिस्टर है, जो मतलब नहीं जानती कुछ भी उर्दू को, तो उसने भी डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, उनका भी हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो जब का सबका जब तक नहीं होता क्लियर तब तक हम आगे इंशाल्लाह नहीं बढ़ेंगे। हाँ, इसलिए कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। फिर हम यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। इस क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं, आपको जो दिक्कत है, जो सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।